اور ایسا میری آنکھوں کے سامنے میں حلفاً کہتی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کہ یہ ایف آئی آر بالکل بے بنیاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں حلفاً بیان دینے کو تیار ہوں کہ ایسا انہوں نے اپنے ٹینور میں ایسی کوئی بھی خرد برد نہیں کی، اور اگر ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہمیں بخشتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، کل فواد چودھری کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کیا جا چکا تھا، لیکن آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں پیش کرنے کے دوران فواد چودھری نے کیا ڈیمانڈ سامنے رکھا تھا، اور اس کے علاوہ فواد چودھری نے عدالت کے سامنے انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ہبا چودھری جو ان کی اہلیہ ہے، ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے، ایک تو اس کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے آج کیس کے حوالے سے۔ وہیں دوسری جانب پہ یہ بھی بتائیں گے کہ فواد چودھری کو آخرکار گرفتار کیوں کیا گیا ہے، اچانک فواد چودھری کی گرفتاری کی وجہ کیا بنی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے، تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کے عدالتی جو کارروائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج عدالت نے فواد چودھری کو، جو گزشتہ روز گرفتار کیا جا چکا تھا، آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور جب فواد چودھری کو عدالت میں لایا جا رہا تھا تو اس وقت فواد چودھری کے چہرے پر کپڑا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے ساتھ ان کو آج ڈسٹرکٹ کے جوڈیشل کمپلیکس میں ڈیوٹی جج عباس شاہ کی عدالت میں ان کو پہنچایا گیا۔ ان کے چہرے میں کپڑا ڈالا ہوا تھا، جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑے مجرم اور بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہیں۔ اس طرح افسوس کی بات ہے کہ پولیٹیشنز کو کیوں اتنے عجیب و غریب طریقے سے ان کے ساتھ ایک ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک عجیب طریقے سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یوں آج ان کے چہرے میں کپڑا ڈال کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے ساتھ آج ان کو عدالت میں جب پیش کیا گیا جج عباس شاہ کی عدالت میں، تو اس دوران فواد چودھری نے موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے وکلاء کے ساتھ ملنا ہے، مجھے ملنے کی پرمیشن دی جائے، جس پر فاضل جج نے فواد چودھری کو ان کے وکلاء سے ملاقات کی باقاعدہ پرمیشن دی، وہ اپنے وکلاء سے ملے، اور بہت سے سیاسی اور بالخصوص جو کیس ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن وہ اپنے وکلاء سے کرنے کے بعد فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، وہ کمرہ عدالت میں انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا کہ فواد چودھری کے چہرے پر کپڑا کیوں ڈالا گیا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ فواد چودھری اتنے بڑے کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، یا پھر کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف کسی ایکٹیویٹیز میں تو ملوث نہیں ہے، آخرکار ان کے چہرے میں کپڑے ڈالنے کی وجہ کیا ہے۔ دوران سماعت پولیس نے عدالت سے فواد چودھری کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے دینے کی استدعا کی تھی، لیکن فواد چودھری کے خلاف اسلام آباد تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج ہے، جس پر درخواست گزار نے وہ 5 دن کی وہ جب ڈیمانڈ کر رہے تھے تو عدالت کی جانب سے ان کو 5 دن کے جوڈیشل ریمانڈز پر تو ان کی استدعا قبول نہیں کی گئی، لیکن 2 روزہ جسمانی ریمانڈز پر آج فواد چودھری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، فواد چودھری کے خلاف اسلام آباد تھانہ اپارہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گرفتاری سامنے آ چکی ہے۔ کل بھی جب ہبا چودھری ان کی اہلیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ فواد چودھری کو اسلام آباد ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان کی گرفتاری کی جو اصل وجوہات ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن آج وہ وجوہات سامنے آ چکے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج ہے، جس میں درخواست گزار نے فواد چودھری پر 50 لاکھ روپے لے کر نوکری دلوانے کا جو مقدمہ تھا وہ درج کیا ہے۔ یعنی 50 لاکھ روپے مجھ سے لیے تھے باقاعدہ نوکری دینے کے وعدے کے ساتھ، اور یوں مجھے وہ نوکری بھی نہیں ملی، اور اس کے بعد جب میں نے پیسوں کا ڈیمانڈ کیا تو فواد چودھری نے مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہے۔ یہ اس درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا جا چکا ہے۔ فواد چودھری کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ جو مدعی ہیں میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں، یہ ایک بے بنیاد اور بیس لیس ایک میرے اوپر جو ہے وہ کیس ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا فواد چودھری کا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں، سابق وفاقی وزیر اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں ریمانڈ لیا جا رہا ہے وہاں باتھ روم نہیں ہے، مجھے باتھ روم کی سہولیت جو ہے وہ دی جائے، اور بچوں سے ملاقات کی بھی اجازت ملنی چاہیے۔
अदालत की जानिब से फवाद चौधरी के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है और हुक्म दिया है कि फवाद चौधरी को उनकी फैमिली के साथ मिलने की परमिशन भी दी जाए, उनको मिलवाया जाए और उनका तिबी मुआयने के हवाले से भी अदालत ने बाकायदा ताकीद फरमाई है। उसके बाद उनको पुलिस के हवाले किया गया। यूँ आज के केस की उनकी पेशी के हवाले से जो अपडेट्स थी वो हम आप तक पहुँचा रहे थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या है? अचानक फवाद चौधरी को गिरफ्तार क्यों किया गया है? किन वजूहात की वजह से एक बार फिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका है? नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि अभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जो है बाकायदा शिकंजा टाइट करना चाहती है। उसकी एक बुनियादी वजह है, वो वजह ये है कि फवाद चौधरी के अलावा बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया और बहुत से रहनुमाओं ने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़कर वो इमरान खान से किनारा कुशी जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत ही पुराने वर्कर रहनुमा थे, जिनका इस पार्टी को बनाने में बड़ा किरदार था। वो आखिरकार इमरान खान के खिलाफ ही वादा माफ़ गवाह बनकर सामने आ चुके हैं। और उसमें ऐसे रहनुमा हैं जिनका ज़िक्र करके आप खुद हैरान होंगे कि जिसमें वो तमाम रहनुमा जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते थे कि 9 मई और 10 मई को जो कुछ हुआ है उसकी मज़म्मत करते हैं और उसमें बराह रास्त इमरान खान के मुलविस होने के हवाले से, यानी उनकी ईमा पर सब कुछ होने के हवाले से बाकायदा बताया जा रहा था। तो यूँ अब जो है ये तमाम गिरफ्तारियाँ और ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उसके अलावा पार्टी छोड़ने पर मजबूर करने के ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम नहीं हो रहा है। दिन ब दिन उनके वोटर्स की जो तादाद है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है और बहुत से लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को अभी भी वोट देना चाहते हैं। यूँ बिलख़ुसूस पंजाब के अंदर जो हैं बहुत से वोटर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के मज़ीद बन चुके हैं। जब नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आए तो उनके लाहौर में उनका जो जलसा था, उस जलसे के दौरान मैं खुद वहाँ मौजूद था और मैंने खुद देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुन जो हैं उस जलसे में मौजूद थे और वो बिंदास तरीके से कह रहे थे कि इमरान खान वापस आएँगे। तो यूँ हर जगह में इस वक़्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों में इज़ाफ़ा हो रहा है, उनका वोट बैंक मज़बूत हो रहा है। तो ये इस वक़्त भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दर्द सर है। वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मुकम्मल ख़ात्मा हो और जिनको नवाज़ना चाह रहे हैं, उनको नवाज़ने में आसानी पैदा हो। तो इसलिए अभी भी तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद शिकंजा टाइट करने का जो प्लान है, उस पर काम जारी है और दोबारा सख्तियों में इज़ाफ़ा किया जाएगा। इस हवाले से अल-कादिर ट्रस्ट जो केस है, वो इमरान खान के लिए एक बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है। अल-कादिर ट्रस्ट जो है, वो दोबारा इसको तैयार किया जा चुका है और इसमें 19 करोड़ का जो घपले हैं 19 करोड़ के, उसके हवाले से बाकायदा जो उस वक़्त काबीना से एक बंद लिफ़ाफ़े में साइन सबसे जो लिए जा चुके थे, उस हवाले से पूछ-गछ और फिर उसके खिलाफ जो है बाकायदा तैयारी के लिए अभी जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा उस काबीना के बंदों की ज़रूरत है, जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी भी हो और अहम ओहदों पर रहे हो और इस मामले के हवाले से जानकारी भी रखते हो। तो इस मामले पर बाकायदा एक गेम जो है वो तैयार की जा चुकी है और अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान को बड़ा टफ टाइम देने का प्लान जो है वो तरतीब दिया जा चुका है। इमरान खान पाकिस्तान में जब आम इंतखाबात होंगे तो उस वक़्त वो जेल में ही होंगे, यानी कई तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो पार्टी मज़ीद भी छोड़ चुके होंगे उस वक़्त और कई को निशान इबरत बनाया जाएगा, बहुत से रहनुमा जेल में होंगे, बहुत से कारकुनों को और जो ज़िली और डिविज़नल सतह पर जो कारकुन और रहनुमा हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा और यूँ इमरान खान जेल में होंगे और हमने पहले भी बताया है कि वो मुख्तलिफ अपने केसेस भुगतेंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए बाकायदा खुला ग्राउंड जो है वो छोड़ा जाएगा। तो यूँ अल-कादिर ट्रस्ट जो केस है उसमें बाकायदा फवाद चौधरी यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम रहनुमा थे। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी वज़ीर रह चुके हैं और वज़ीर इत्तलात भी वो रह चुके हैं और इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी भी वो रह चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जिस वक़्त परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ जब वो जॉइन कर रहे थे तो उस वक़्त फवाद चौधरी से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहे थे और फवाद चौधरी बिलख़ुसूस उस वक़्त परवेज़ इलाही जब तहरीक इंसाफ जॉइन कर रहे थे तो इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब इससे पहली बार जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका था, तो उस वक़्त परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया था कि अगर इसको पहले ही फड़ देते यानी गिरफ्तार कर लेते तो आज पंजाब में हुकूमत का ख़ात्मा ना होता।
तो यूँ वो बिल्कुल खुश नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी ज़रूर थे। तो अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया जाए और उसको गिरफ़्तार करने के बाद उनसे वो तमाम बातें उगलवाई जाएँ, जो अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से अहम इन्फॉर्मेशन उसके पास होने के इम्कानात ज़्यादा ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो यूँ इसीलिए आज फवाद चौधरी को बाकायदा 2 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जो है, वो बाकायदा पुलिस के हवाले तो कर चुके हैं, लेकिन आगे भी फवाद चौधरी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की जाएँगी। उसके साथ-साथ असद कैसर के हवाले से आप बखूबी आगाह हैं कि उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका था, तो उनके खिलाफ भी बाकायदा शिकंजा टाइट किया जा चुका है। असद कैसर भी इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी रह चुके हैं और असद कैसर के हवाले से आप बखूबी आगाह हैं कि जिस वक़्त अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाला जा रहा था, तो उस वक़्त असद कैसर को इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया और उनको कहा कि आप जो हैं आज ये अदम एतमाद की वोटिंग का जो सिलसिला है इसको रोक लें, ताकि हम अगली गेम डाल सकें। उस वक़्त असद कैसर ने कहा कि खान साहब मैं कैसे रोक सकता हूँ? अभी तो इसमें अदालत भी इन्वॉल्व हो चुकी है और रात के अंधेरे में अदालतें खुल चुकी हैं, तो ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए अब। तो लिहाज़ा ये नहीं कर पाऊँगा। तो इमरान खान ने बड़े ज़ोर दिया, तो उसके बाद जो है आपने देखा कि उसके बाद जब वो वापस आ गए पीएम हाउस से और आने के बाद वो पार्लियामेंट में आने के बाद अपनी नशस्त में बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं स्पीकरशिप से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और जब वो मुस्तफ़ी हो गए, तो उसके बाद जो हैं उस वक़्त डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने बाकायदा रूलिंग चलाई और जो कुछ करना था वो उन्होंने कर लिया। लेकिन उस वक़्त भी ये उस चीज़ से पीछे हट गए। तो इमरान खान जो हैं वो कहते थे कि ये एक मेरे बहुत ही मतलब वो कहना चाह रहे थे, इमरान खान ने बाद भी बहुत जगहों में कहा कि वो मतलब डरपोक किस्म के मेरे कारकुन और रहनुमा थे। असद कैसर ने उस तरीके से जिगर पैदा नहीं कर सके। लेकिन असद कैसर को एक बार फिर दोबारा उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी और असद कैसर को इमरान खान के खिलाफ जो है वो बाकायदा सुल्तानी गवाह बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।